بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے بیان میں۔ سب سے پہلے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، قربانی کے مسائل جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ما قبل سے اس کی مناسبت ظاہر ہے، کیونکہ جہاد میں مال اور جان دونوں کی قربانی دی جاتی ہے، اور اضحیہ یعنی قربانی میں مال خرچ کر کے جانور کی قربانی دی جاتی ہے۔ اضحیہ کی مشروعیت قرآن، حدیث، اجماع تینوں سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے مقام کو واضح کرتے ہوئے اسے دین اسلام کا شعار قرار دیا ہے، جو کہ ہر مومن کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ قربانی اسلام میں اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اب قربانی کا لفظ ایک دوسرے عربی لفظ قربان سے نکلا ہے۔ عربی میں قربانی اس فعل اور عمل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کا قرب ہو۔ اب یہ فعل چاہے مال اور دولت کے ذریعے صدقہ خیرات سے حاصل ہو، یا پھر جانور کو ذبح کر کے اس کی قربانی کے ذریعے اللہ کا قرب مقصود ہے۔ ہر ایک کو قربانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن اب عرف عام میں یا شریعت کی اصطلاح میں قربانی کے لفظ سے جانور کو ذبح کر کے قربانی کرنا مراد لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، قرآن سے تو اس کی مشروعیت ثابت ہو گئی، سنت سے بھی اس کی مشروعیت جو ہے وہ ثابت ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینوں کی قربانی دی اور امت کا اس کی مشروعیت پر اجماع بھی ہے۔ تو اب دیکھیے، اب ہم نے یہاں پر یہ تو پڑھ لیا کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، کیا قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے۔ تو آئیے پہلے حدیث کی عبارت دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے حکم کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو قربانی کے بارے میں یعنی قربانی واجب ہونے کے بیان میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد تحويل فحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي غملة قال أخبرنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية فعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت مخنف بن سلیم سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے اور عقیرہ ہے۔ اور کیا تم کو معلوم ہے کہ عقیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے جس کو لوگ رجبیہ کہتے ہیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عقیرہ کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور یہ حدیث بھی منسوخ ہے۔ تو اب اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ عقیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اولو ان علی اہل کل بیت فی کل عام، تو یہ اہل جاہلیت کا جو عقیرہ تھا وہ یہ تھا کہ جانور کو بت کے نام پر قربان کرتے تھے اور بت کے سر پر اس کا خون ڈالتے تھے۔ اب اس کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ جو عقیرہ زمانہ جاہلیت کا تھا وہ صراحتاً شرک تھا۔ اسی لیے علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو عقیرہ ثابت ہے یہ ماہ رجب میں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانے والا جانور ہے۔ تو اب ہم اس حکم کے بارے میں پڑھیں گے کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے یا پھر مسنون ہے یا پھر سنت موقدہ ہے۔ تو دیکھیے،
यहाँ पर चारों इमाम यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और तमाम उलमाए किराम कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुर्बानी के इस्लामी शिआर होने और हर साल कुर्बानी का खास एहतमाम करने पर मुत्तफिक है। हाँ, अलबत्ता कुर्बानी को वाजिब या सुन्नत मौक़ूदा का नाम देने में ज़माने कदीम से इख्तिलाफ चला आ रहा है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कुरान और हदीस की रोशनी में हर साहिब इस्तिताअत पर इसकी यानी कुर्बानी के वाजिब होने का फैसला फरमाया। हजरत इमाम मालिक रहमहुल्लाह भी कुर्बानी को वाजिब करार देते हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का एक कौल कुर्बानी के वजूब का है। तो इसी तरह अल्लामा इब्न तैयमा रहमहुल्लाह ने भी कुर्बानी के वाजिब होने के कौल को ही राजे करार दिया है। हाँ, अलबत्ता इमाम शाफी रहमहुल्लाह और फुक़हा और उलमा की दूसरी जमात ने यहाँ पर कुर्बानी के दलाइल पर रोशनी डालते हुए कुर्बानी के सुन्नत मौक़ूदा होने का जो वो ज़ाब्ता इख्तियार किया है, लेकिन इल्मी एतबार से उम्मत मुस्लिमा का इस पर इत्तिफाक है कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए और वुसअत के बावजूद कुर्बानी न करना ये गलत है। इसको जो भी नाम दिया जाए। अब पहले हम वजूब के दलाइल देखेंगे। तो देखिए, अल्लाह ताला का इरशाद है फस्वल्ली लिरब्बिका वन्हर, यानी अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लामा अबू बकर राजी रहमहुल्लाह इस आयत के बारे में लिखते हैं कि आयत से दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि नमाज ईद वाजिब है और दूसरा ये कि कुर्बानी भी वाजिब है। इसी तरह मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं फस्वल्ली लिरब्बिका वन्हर, इससे ये भी साबित हुआ कि जिस तरह नमाज ईद वाजिब है, इसी तरह वन्हर से कुर्बानी का वाजिब होना भी साबित होता है। इसलिए ये मुतलक अमर वजूब के लिए आई है। अब दूसरी हदीस को देखिए, यानी दूसरी इसकी दलील जो वजूब के लिए लाई गई है वो देखिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहु सअतुन वलम युज़ाही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तिताअत के बावजूद भी कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ना आए। तो देखिए, इस रिवायत से मालूम हो गया कि कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है, वरना इसके छोड़ने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सख्त वईद ना फरमाते। अब तीसरी दलील देखिए। हदीस में आता है, इब्ने उमर से ये हदीस है, फरमाते हैं क़ाल अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनती अशर सीना युज़ाही। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। इसमें जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल क़ियाम किया और हर साल कुर्बानी की। तो इन दलाइल के अलावा और भी बहुत से दलाइल हैं जिससे साफ पता चलता है कि हर वो शख्स जो कि दरमियाने दर्जे का ताल्लुक रखता है, यानी दरमियाने घर से उसका ताल्लुक है, फुक़हा की इस्तिलाह में जिस पर सदका फितर वाजिब हो, इसके लिए कुर्बानी देना भी वाजिब है। अब हम ये अदम जवाज की जो दलील है वो देखेंगे। अदम जवाज की दलील हजरत इब्न अब्बास से मरवी है। फरमाते हैं क़ाला समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन हुन्ना अलैया फ़राइज़ु व हुन्ना लकुम ततव्वुउल वत्रू वन नहरु फस्वलवातुल ज़ुहा। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें मुझ पर फर्ज की गई हैं और वो तुम्हारे लिए नफल हैं, वितर, कुर्बानी और इशराक की नमाज। इस हदीस के बारे में हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस का मरकजी रावी अबू जनाब कल्बी रहमहुल्लाह है, जो कि इकरमा से बयान करता है। और अबू जनाब ये ज़ईफ रावी हैं, बल्कि इनको मुदल्लस भी कहा जाता है और इकरमा से बयान करते हुए ये अन से रिवायत करते हैं, इसलिए कुरान के मुकाबले में हुज्जत नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि ये हदीस वजूब से पहले लाई गई है, यानी वजूब से कबल पर महमूल है।
आगे अब अगली हदीस को देखिए, उसकी इबारत पढ़ते हैं, फिर हम आगे उसको बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अगली हदीस देखिए, वबी क़ाल हद्दसना हारून बिन अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यज़ीद क़ाल हद्दसनी सईद इब्न अबी अय्यूब क़ाल हद्दसनी अय्याश इब्न अब्बास कुतबानीशी अन ईसा इब्न हिलाल सदफीशी अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न al-आखी अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उमिरतु बियौम अज़्हा ईदन जअलहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिहाज़िहि उम्मती क़ाल अर्रजुलु अरअयत इन लम अजिद इल्ला उज़ीहतन खुंसा अफ़ा उज़ाही बिहा क़ाल वला वलाकिन तअख़ुज़ मिन शअरिका व अज़फ़ारिका व तक़ुस्सु शारिबका व तहलिकु आनतका फतिलका तमामु उज़कियतिका इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अज़हा के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन ईद मनाने का हुक्म हुआ है, यानी 10वीं जिलहज्जा को, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए ईद करार दिया है। एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरे पास सिर्फ आरियतन मिली हुई ऊँटनी या बकरी हो तो क्या मुझ पर इसकी कुर्बानी भी वाजिब है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तू सिर्फ अपने बाल और नाखून कुतर ले और मूछें कम करा दे और जेरे नाक के बाल मुड़वा दे, बस अल्लाह के नजदीक तेरी यही कुर्बानी है। अब यहाँ पर देखिए फरमाया गया है, क़ौलुहु क़ाल अर्रजुलु अरअयत इन लम अजिद इल्ला उज़ीहतन उन्सा। अब यहाँ पर यानी मुअन्नस हदिया दिया जाने वाला जानवर है। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ कि कुर्बानी हर फर्द पर वाजिब है, यानी ये भी हदीस जो है ये वजूब पर दलालत करती है। ये हदीस भी वजूब के लिए लाई गई है। तो हासिल कलाम ये हुआ कि ईद की कुर्बानी वाजिब करार देने वाली अहादीस पर अहले इल्म का कलाम मौजूद है, अगरचे कुछ अहले इल्म ने इन्हें हसन करार दिया है। और इसी तरह जिन अहादीस में कुर्बानी को मुस्तहब करार दिया गया है, इन पर भी कलाम है, बल्कि इनकी असानीद पर शदीद नौइयत का ज़ईफ होने का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसलिए मुहद्दिसीने किराम का कहना है कि हमने अहले इल्म की कुर्बानी के हवाले से आरा को दलाइल के साथ जिक्र कर दिया है, ताकि दीन इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत वाज़ेह हो। इसी तरह दो तरफा दलाइल ऐसे हैं कि कुव्वत में करीब करीब महसूस होते हैं। तो एहतियात का तकाजा यही है कि इस्तिताअत के होते हुए कुर्बानी तर्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी से अजमत इलाही का इजहार होता है और यकीनी तौर पर इंसान इससे उहदाबरा हो जाता है। कुर्बानी की बहुत सारी हिकमतें हैं, इन सब से अहम तकवा है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। अल्लाह ताला का फरमान है, कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब खालिस अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहान का मालिक। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।